Honorable Chief Guest of the session, an upstanding person, Dr. Pawan Sharma ji, Divisional Commissioner of Indore, who is joining us virtually, highly admirable member of CA fraternity, pillar of Indore branch, Central Council member, CP Committee Chairperson, CA Kemisha Soni ma'am, Central Council member and very humble and respectful Regional Council Chairman, our own CA Nilesh Gupta ji, our energetic Regional Council member, very down to earth CA Churchill Jain sir, Honorable Chairman of Indore branch CA Kirti Joshi ji, Vice Chairman of Indore branch CA Samkit Bhandari ji, past Chairman of Indore branch CA Pankaj Shah ji, and all members presented here and connected virtually in this webinar. Also, I welcome CA Niranjan Joshi ji from Mumbai, speaker of our first technical session. I, CA Ankush Jain, Secretary of Indore branch, bid you all a warm welcome on behalf of Indore branch of CIRC of ICI. The emerging season of bank audit has brought with it multiple queries regarding audit procedures in bank audit, regarding IRAC norms, regarding revised LFR, regarding provisioning norms in agri accounts, what are the impact of court decision, what are the COVID effect on banking systems, and वन थिंग आई वुड लाइक टू से दैट इस साल का जो हमारा ऑडिट है वो ना सिर्फ एक साल का ऑडिट होगा बल्कि हम बोल सकते हैं कि दो फाइनेंशियल ईयर्स का ऑडिट हमारे लिए है क्योंकि प्रीवियस ईयर जो ऑडिट हुआ था वो वर्चुअली हुआ था और किस लेवल तक सेटिस्फेक्शन के साथ वो ऑडिटर्स ने पूरा किया ये आप और हमें पूरा पता है सो बहुत ज्यादा यहाँ पर कंसर्निंग होकर हमको इस साल ऑडिट प्रोसेस करना है सो विद द एम ऑफ addressing important aspects regarding bank audit, we Indore branch of CIRC of ICI is pleased to host this 2 days conference on bank audit organized by Auditing and Assurance Standard Board of ICI and hosted by Indore branch. Now I would like to invite respected Chairman of Indore branch, CA Kirti Joshi ji, for his welcome address. Thank you, Ankush ji. Respected Dr. Pawan Sharma ji, Divisional Commissioner, very learned Central Council member, our own CA Kemisha Soni ji, Chairman CP Committee and Women Empowerment Committee, Youth Icon, our own Regional Chairman CA Nilesh Gupta ji, and down to earth personality CA Churchill Jain ji, Regional Council member, seniors in the professions, and my dear friends, past chairman of Indore branch, CA Pankaj ji Shah ji, vice chairman of Indore branch, CA Samkit Bhandari ji, मैं देश की सबसे स्वच्छ शहर की सर्वश्रेष्ठ ब्रांच इंदौर में आप सभी का इस 2 दिवसीय नेशनल कॉन्फ्रेंस में हार्दिक स्वागत करता हूं और जैसा कि ये हमारी जो नेशनल कॉन्फ्रेंस है बैंक ऑडिट पर है और 13 अक्टूबर को सुप्रीम कोर्ट का एक डिसीजन आया एनपीए नॉर्म्स को लेकर। आवाज कैसे आएगी? तो हमारे बीच यह एक कंफ्यूजन की स्थिति है कि ऐसे केस में जहां ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का हमारे पास कोई डिसीजन है एनपीए नॉर्म्स को लेकर, क्या मुझे अपने इंस्टीट्यूट के गाइडेंस नोट को फॉलो करना है या मुझे सुप्रीम कोर्ट के डिसीजंस को जो है फॉलो करना है? तो इसके लिए हमारे बीच में मुंबई से जोशी जी उपस्थित हैं, तो मैं सर आपका भी स्वागत करता हूं। और हम अगर ये देखें कि हमारे सभी स्पीकर्स जो हैं वो बहुत ही एक्सपीरियंस्ड हैं और हमारे सारे टॉपिक जो 2 दिन के हमने टॉपिक रखे हैं वो सभी बहुत ही रिलेवेंट टॉपिक्स हैं और मुझे विश्वास है कि हमारी जो नेशनल कॉन्फ्रेंस है न ये केवल प्रैक्टिकल रूप से हेल्पफुल रहेगी बल्कि बहुत सारी पिक्यूलर सिचुएशंस जो हैं कि ऑडिट को कैसे डील किया जाए या कहीं पर कोई फ्रॉड इन्वॉल्वमेंट है तो उसकी रिपोर्टिंग एलएफएआर में की जाए या ऑडिट रिपोर्ट में अलग से की जाए या एलएफएआर में जो मेजर चेंजेस हैं उसे हमें कैसे रिपोर्ट करना है। और वर्चुअल ऑडिट जैसा कि अंकुश जी ने बताया कि वर्चुअल ऑडिट लास्ट ईयर हमने किया और करंट ईयर में भी बहुत सारी जगह ऐसी सिचुएशन हो सकती है कि हमें फिर वर्चुअल ऑडिट करना पड़े, तो वर्चुअल ऑडिट कैसे किया जाए, क्योंकि लास्ट ईयर तक तो हमें ऐसा लगता था
कि बहुत वर्चुअल ऑडिट करना इज इम्पॉसिबल, और एज फार एज बैंकिंग इज कंसर्न इट इज नेक्स्ट टू बी इम्पॉसिबल। पर कोविड ने हमें बहुत कुछ सिखाया। और यहाँ पर एक चीज और ये बोलना चाहूंगा कि जो सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन है एनपीए नॉर्म्स को लेकर, वो करंट ईयर के क्लासिफिकेशन को लेकर है। लेकिन अगर प्रीवियस ईयर का कोई क्लासिफिकेशन है और उसकी प्रोविजनिंग का सवाल है, तो प्रोविजनिंग में मुझे जो है वो मेरे ख्याल से सर प्रोविजनिंग तो मुझे उस हिसाब से करना होगी कि 2 इयर्स 3 इयर्स के हिसाब से जो डाउटफुल बेड एसेट्स और उनके अकॉर्डिंगली, तो वो हमारे लिए एक मेजर कंसर्न का सब्जेक्ट यहाँ पर ऑडिट में रहेगा। और इंदौर ब्रांच इस वर्ष 50 ईयर जो है वो गोल्डन जुबली ईयर सेलिब्रेट कर रही है, और हमने बहुत सारे न्यू इनिशिएटिव्स इस साल लेना स्टार्ट किए हैं, जिसमें पहला इनिशिएटिव रिटर्न टू रिटर्नशिप करके एक हमने इनिशिएटिव फीमेल मेंबर्स के लिए लिया। जब इंदौर ब्रांच की डायरेक्टरी का काम चल रहा था तो हमने देखा कि इंदौर में नियर अबाउट 1800 फीमेल चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हैं, एंड आउट ऑफ 1800 फीमेल चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हार्डली 350 फीमेल चार्टर्ड अकाउंटेंट्स आर इनटू एक्टिव प्रैक्टिस और जॉब। रेस्ट 1500 किसी न किसी कारण से, या तो फैमिली प्लानिंग या फैमिली इश्यूज, किसी कारण से 2-3 साल का गैप हो गया और वो एक तरीके से प्रोफेशन से कट हो गई। हमने 15 डेज का, अभी 7 डेज का एक फ्री ट्रेनिंग सेशन स्टार्ट किया है, जिसमें 14 आवर्स की सीपी भी मिलेगी फीमेल चार्टर्ड अकाउंटेंट्स को। 7 डेज प्रैक्टिकल ट्रेनिंग सेशन फ्री फॉर वुमेन चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, ताकि वो वापस प्रैक्टिस में आ सकें। तो एक ये रिटर्नशिप इनिशिएटिव हमने स्टार्ट किया है। सेकंड, हमारी जो ब्रांचेस हैं उसमें आर्टिकल स्टाफ की हमको ऐसा लग रहा है कि हमारे यहाँ पर बहुत सारी कमी है मेंबर्स के पास। तो बीकॉम परसुइंग स्टूडेंट्स को हमने फ्री 15 डेज की ट्रेनिंग देना स्टार्ट किया है, और बहुत जल्दी हम उनके लिए कैंपस ब्रांच के थ्रू ऑर्गेनाइज करेंगे। तो आप लोगों को अगर लगता है कि आपके ऑफिस में उन स्टाफ को रिक्रूट करके आप अपना कुछ इनिशियल वर्क कर सकते हैं, तो वो एक इनिशिएटिव हमने स्टार्ट किया है ताकि आर्टिकल्स की कमी को हम दूर कर सकें। दैट वाज अवर सेकंड इनिशिएटिव। थर्ड इनिशिएटिव, जो ये स्ट्रीट हमारा है, शहर को स्वच्छ रखना हमारी जवाबदारी है, तो हम इस पूरी सड़क का जो है वो सौंदर्यीकरण का काम करेंगे, जिससे कि सीए की भी ब्रांड बिल्डिंग हो और शहर की भी ब्रांड बिल्डिंग हो। फोर्थ इनिशिएटिव हमने लिया अमेंडमेंट्स इन वन लाइन। जितने भी अमेंडमेंट्स आते हैं, जनरली हमारे पास इतना टाइम नहीं होता है कि हम पूरा नोटिफिकेशन पढ़ सकें, तो पुनरावृत्ति करके हमने एक चालू किया है, जिसमें हम व्हाट्सएप पे आपको जैसे ही कोई चेंजेस आते हैं तो पुनरावृत्ति में हम आपको वन लाइनर अमेंडमेंट्स भेजते हैं। दैट वाज अवर फोर्थ इनिशिएटिव। फिफ्थ इनिशिएटिव आओ बाटे प्यार, जिसमें जब भी हमारे मेंबर्स का बर्थडे होता है, हार्डली 1500 2000 जितना उनको कंट्रीब्यूट करना है वो सोशल कॉज में कंट्रीब्यूट करें। ब्रांच उस पैसे को लेके और सोशल एक्टिविटीज में लगाती हैं। हमने भी 7 स्विंग मशीन जो है वो एक सेंटर पे डोनेट की, ताकि ऐसी महिलाएं जिनके पास आजीविका का कोई साधन नहीं है वो वहां पर सिलाई सीखे और अपना घर चला सके। तो वो हमने फर्स्ट इनिशिएटिव लिया। सेकंड, अभी हमने पक्षियों के लिए सकोरे गर्मी के अंदर रखने का काम स्टार्ट किया, वो भी इसी के अंदर एक कड़ी थी। थर्ड, हमने भी 2 आंगनवाड़ी के अंदर जो है वो बच्चों को पढ़ाना स्टार्ट किया है। जो 10th और 12th के बच्चे, उनकी शाम की वहाँ कोचिंग क्लासेस लगती हैं आंगनवाड़ी में, उन बच्चों को फ्री में हमने कोचिंग देना स्टार्ट किया है, ताकि वो बच्चे आगे बढ़कर कुछ कर सकें। सो दैट वाज अवर अगेन इनिशिएटिव। कोविड वैक्सीनेशन में हमारे यहाँ से 150 प्लस सीए मेंबर्स और उनकी फैमिली को जो है वैक्सीनेशन इंदौर ब्रांच के थ्रू लगा। हम इस वैक्सीनेशन ड्राइव को 1 अप्रैल से जो है 45 प्लस के लिए भी लेकर आएंगे। सो विद दिस वर्ड आई वेलकम यू ऑल। थैंक यू वेरी मच। Thank you, Chairman sir. Now, due to some engagement, our regional council member CA Churchill Jain sir is not with us. So, I request now CIRC Chairman, our own CA Nilesh Gupta ji, for his address. Very good morning and namaste to all. Respected Pawan Sharma ji, Commissioner Indore, virtually present. Respected our own Central Council member, Chairperson, CP and Women Member Empower Committee of ICI, CA Kimesha Soni ji. Respected my dear friend Churchill Jain ji, Regional Council member. Respected CA Kirti Joshi ji, नंबर 1 ब्रांच ऑफ इंडिया के यंग एंड डायनामिक चेयरमैन कीर्ति भाई, सेक्रेटरी माय डियर अंकुश जैन, पास्ट चेयरमैन पंकज शाह जी,
Samkit Bhandari ji, Vice Chairman, respected seniors and virtually present young and dynamic members of ICAI, and especially women members of ICAI. Very, very good morning to all of you. We welcome on behalf of entire Indore branch family for this 2 days national conference on bank audit topic. तो ये अपने आप में पवन शर्मा सर दिखाता है कि हम चार्टर्ड अकाउंटेंट लर्निंग के प्रति कितने उत्सुक होते हैं कि जब भी कोई नया टॉपिक आता है तो उसको लेकर के हम लोग तत्परता से उस कार्य को सीखने के लिए या उसमें जो अपडेशन आता है उसको अपडेशन को अपने अंदर लेने के लिए जागरूक रूप से इस कोविड टाइम में भी आप सब यहाँ प्रेजेंट हैं, तो मैं सबसे एक बार चाहूंगा कि आप सब अपने लिए एक बार ताली बजाएं कि ये आप सबकी अंदर का जो एक जागरूकता है, अवेयरनेस है, और जो हमारा मोटो है इंस्टीट्यूट का, यह है सप्तेषु जागृति, सोए हुए लोगों में जागा हुआ व्यक्ति। तो उस बात को आप चरितार्थ करते हुए आप सब यहाँ आए हैं, तो आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। बैंक ऑडिट के ऊपर जो टू डेज नेशनल कॉन्फ्रेंस इंदौर ब्रांच ने आयोजित की है, उसमें सारे टॉपिक्स को सीरीज बाय सीरीज वर्किंग पेपर से स्टार्ट करते हुए सीबीएस एनवायरनमेंट, expectation of government और बैंकर फ्रॉम द ऑडिटर या कोर्ट ऑफ एथिक्स और पैनल डिस्कशन, इन सभी का एक बहुत ही अच्छा जो हम लोगों ने यहाँ पर वो एक्यूमुलेशन किया है, तो डेफिनेटली इट विल इंक्रीज योर नॉलेज एंड फ्रॉम दिस वेबिनार एंड सेमिनार डेफिनेटली यू विल गेट अपडेशन एज रिक्वायर्ड। तो इस पे तो बहुत ज्यादा मैं कुछ जाऊंगा नहीं, लेकिन मैं ये जरूर बताना चाहूंगा कि बीइंग ए चेयरमैन ऑफ CIRC मैंने अभी आप सबके सहयोग, सपोर्ट एंड आशीर्वाद से पदभार ग्रहण किया है। तो मैं आप सबको आश्वस्त दिलाना चाहता हूं कि हम चार्टर्ड अकाउंटेंट जो कि पार्टनर इन नेशन बिल्डिंग है, उस बात को चरितार्थ करते हुए आगे बढ़ेंगे। और उसी कड़ी में हम लोग एक अवेयरनेस प्रोग्राम एंटायर रीजन प्लान कर रहे हैं, जिसमें हम बिजनेसमैन के पास जाएंगे और गवर्नमेंट की क्या एक्सपेक्टेशन है टैक्सपेयर से, गवर्नमेंट बिजनेसमैन से, वो हम उनको एजुकेट कराएंगे। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि हम लोग तो सब समझते हैं, गवर्नमेंट भी ये चाहती है कि हाँ ये सब काम पूरा होना चाहिए, लेकिन जो अल्टीमेटली जिनके ऊपर इस बार की जिम्मेदारी है, जिनको ये काम करना है, उन लोगों को अवेयरनेस ही नहीं है। उन्हें यही नहीं पता कि अब 360 डिग्री इंफॉर्मेशन गवर्नमेंट के पास है। अब GST और इनकम टैक्स पोर्टल और बैंक्स सब मर्ज हो चुके हैं। अगर आप कोई खर्चा क्रेडिट कार्ड से कर रहे हो तो इनकम टैक्स वालों को पहले पता चलता है और आपको बाद में पता चलता है। तो अगर ये सब चीजें बिजनेसमैन को, टैक्स पेयर्स को अगर प्रॉपरली पता होगी तो डेफिनेटली वो और डिसिप्लिन्ड होंगे, और जो 5 ट्रिलियन इकोनॉमी का जो सपना हमारे देश के प्रधानमंत्री ने देखा है, निश्चित ही आप और हम सब मिलकर के उसको पूरा करेंगे। मैं यहाँ पर आदरणीय पवन शर्मा जी भी हमारे साथ हैं। परसों ही हमारी आदरणीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी चौहान से बात हुई थी, उसमें हमने प्रमुखता से इस मुद्दे को रखा, और साथ ही में एक सजेशन और दिया था जिन्होंने बड़ा बखूबी से साथ में लिया कि गवर्नमेंट की काफी सारी ऑडिट्स का काम लोकल फंड ऑडिट के पास होता है और दे आर वेरी एक्सपीरियंस्ड, बट वहां पर वैकेंसीज काफी हैं, वहां पर स्टाफ का फोर्स काफी कम है। और मुझे ऐसा कहना नहीं चाहिए, लेकिन ये वास्तविकता है कि जिस प्रकार से बदलाव अकाउंटिंग और ऑडिटिंग प्रोफेशन में डे बाय डे होते हैं, मंथली होते हैं, इंटरनेशनल लेवल पर होते हैं, उनकी अवेयरनेस थोड़ी वहां पर कम है। तो अगर आप हमारे चार्टर्ड अकाउंटेंट को इन कार्यों में साथ में लेंगे और एग्जीक्यूशन का काम अगर हमारे चार्टर्ड अकाउंटेंट भाइयों को देंगे, तो डेफिनेटली जिस सोच के साथ ऑडिट कंडक्ट किया जाता है, जो जिस तरह की रिक्वायरमेंट होती है, उसमें कहीं ना कहीं हम लोग अच्छे से परफॉर्म करेंगे। और उन्होंने बहुत इजीली उसको कंसिडर किया और उन्होंने इस बात को समझा, और हमको नेक्स्ट मीटिंग के लिए उन्होंने बताया कि हम जल्दी इस चीज को इम्प्लीमेंट करेंगे। तो मुझे लगता है कि हम सब मिलकर के इस देश में जो एक नई क्रांति आई है विकास की, अगर हम सब साथ में मिलकर के चलेंगे तो निश्चित ही हम विश्व गुरु बनने के जो सपने को हम सबने देखा है उसको हम पार करेंगे। इंदौर ब्रांच जो कि देश की सर्वप्रथम ब्रांच है, और हमारे एडमिनिस्ट्रेशन ने जिस प्रकार से इस देश को स्वच्छ भारत के रूप में, क्लीनेस्ट सिटी ऑफ इंडिया के रूप में पिछले 4 वर्षों से, और हम सबको पता है कि हम 5वां साल भी आने वाले हैं, उसको मद्देनजर रखते हुए जिस प्रकार से इंदौर ब्रांच भी पूरे देश में
बेस्ट ब्रांच है। तो मैं बधाई देना चाहूंगा इंदौर ब्रांच के सभी पदाधिकारियों को, मेंटोर्स को, मेंबर्स को, कि इसी तरह से हम आगे बढ़ते रहें। और चूंकि यह वर्ष हम स्वर्ण जयंती वर्ष के रूप में मना रहे हैं, अभी अभी चेयरमैन सर ने बताया कि किस तरह से उनकी नई नई इनिशिएटिव्स हैं, एंड स्पेशली फॉर वुमेन मेंबर्स। आपने बताया कि 4000 मेंबर में से 1800 मेंबर जो हैं वो वुमेन मेंबर हैं, और हमारे साथ हमारी खुशकिस्मती है कि वुमेन मेंबर एम्पावरमेंट कमेटी की चेयरपर्सन हमारे ही अपने शहर से हैं। तो डेफिनेटली हम वुमेन मेंबर्स के लिए, क्योंकि उनकी एक संस्कृति, भारतीय संस्कृति में जुड़े होने के कारण अपनी एक अलग जिम्मेदारी होती है, और उन जिम्मेदारियों के कारण हो सकता है कि वो प्रोफेशनल लाइफ में कहीं ना कहीं पीछे छूट जाती हैं। उस बात को समझते हुए जो ये इनिशिएटिव लिया है, हमको पूरे रीजन में इसको चलाने वाले हैं सर, और इसी को फॉलो करते हुए हम एक सीरीज लॉन्च कर रहे हैं, वाव सीरीज, वुमेन ऑन वेडनेसडे। वाव सीरीज हम लॉन्च कर रहे हैं, जिसमें हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि मंथ के एक वेडनेसडे को स्पेशली वुमेन मेंबर्स के लिए प्रोग्राम आयोजित किया जाए, ताकि वुमेन मेंबर सही मायने में एम्पावर हो सके, और यह देश डबल स्पीड से आगे बढ़ सके। विद दिस वर्ड्स, थैंक यू वेरी मच एंड वेलकम टू दिस कॉन्फ्रेंस। थैंक यू वेरी मच। Thank you, sir, for your kind words. And Indore branch is also fortunate to have CIRC chairman with among us. So again, congratulations to you. Now, moving forward, is our honorable chief guest, Dr. Pawan Sharma ji is connected with us virtually. So I just want to give a brief intro of our chief guest. Shri Pawan Sharma ji, appointed as Divisional Commissioner Indore in 2019. He is also known as environment lover and expert of information. He is presently posted as is Commissioner Field, Narmada Valley Development Authority. Earlier, he was posted as Commissioner of Commercial Tax Department and SGST, and initially Collector of Chhindwara. Dr. Sharma introduced the use of IT in revenue courts, where the parties were informed through SMS about the case hearing. He is an authority on environmental issues also. So we are very fortunate to have you as our chief guest in this conference, and I request our honorable chief guest to say a few words to our members. धन्यवाद। इंदौर सीए शाखा के अध्यक्ष सीए कीर्ति जोशी जी, सीए सचिव अंकुश जैन, रीजनल काउंसिल अध्यक्ष नीलेश गुप्ता जी, चर्चिल जैन जी, और सेंट्रल काउंसिल के मेंबर सीए केमिशा सोनी जी, अन्य सभी मंच पर उपस्थित सदस्यगण। मैं सर्वप्रथम तो इंदौर की जो हमारी ब्रांच है वो देश की प्रथम नंबर 1 पर ब्रांच आई है, उसके लिए बधाई देना चाहूंगा। मुझे लगता है इंदौर में नंबर 1 आने की होड़ चल रही है। हमारी सिटी स्वच्छता में 4 बार से नंबर 1 आ रही है, और आज कोइंसिडेंस है कि भारत सरकार की टीम आज ही शाम को, कल आई थी, उज्जैन चली गई थी, आज ही शाम को अपना इंदौर पहुंच रही है और सर्वे का काम आरंभ कर रहे हैं। तो मुझे लगता है हम 5वीं बार भी प्रथम आ पाएंगे। हमारे सांसद जी भी नंबर 1 है, तो इंदौर में भी सब चीज की नंबर 1 की होड़ है। मध्य प्रदेश की नंबर 1 कमर्शियल सिटी है, सबसे ज्यादा डायरेक्ट इनडायरेक्ट टैक्स यहाँ से है। तो टेक्निकली इंदौर मध्य प्रदेश के भी उसमें और देश के उसमें भी एक तरह से टॉप सिटी के रूप में डेवलप हुई है। मैं सर्वप्रथम एक और जो हमारी इंदौर की ब्रांच है उसका धन्यवाद इस दृष्टि से देना चाहूंगा कि इससे पहले भी लगभग बहुत सी पदस्थापना इंदौर आने से पूर्व रही, और मुझे कभी किसी सीए ब्रांच का एग्जिस्टेंस ही दिखाई नहीं दिया। हो सकता है आपको नेगेटिव स्टेटमेंट लगे, या हो सकता है मेरा इंटरेक्शन कम हो, तो दोष मेरा भी हो सकता है, परंतु मुझे पता ही नहीं था कि सीए ब्रांच भी कहीं एग्जिस्ट करती हैं। जब इंदौर में आए और कमर्शियल टैक्स में मैं कमर्शियल कमिश्नर का काम देख रहा था, तो हमारे जो सीएज हैं दे वर लाइक फैमिली। हमारी सारी वर्कशॉप आयोजित करना, जो नए नए आप जानते हैं जीएसटी एक्ट के अंदर सैकड़ों की उसमें एक संशोधन रोज सर्कुलर्स आ रहे हैं, उनके बारे में अपने मेंबर्स के साथ साथ हमारे अधिकारियों को भी प्रशिक्षण देना। हमारे साथ आप सोचेंगे कि रीवा
सागर, भोपाल तक हमारे सीए साथी गए और वहां उन्होंने ट्रेन किया बिना किसी ऑनरेरियम के। दे ट्रेवल्ड, दे टुक पेन। अभी तो थोड़ा ट्रेवलिंग पे समस्या है कोरोना की वजह से, पर दे रियली सपोर्टेड अस। तो ऐसा महसूस हुआ कि सीएस एंड हमारे ऑफिसर्स, दे आर फैमिली एज ए होल कमर्शियल टैक्स डिपार्टमेंट। मैं इसके लिए इंदौर ब्रांच को बहुत बधाई देना चाहूंगा और सभी पदाधिकारियों को धन्यवाद भी देना चाहूंगा। एक और मैं अभी जो आपने इनिशिएटिव लिए, बड़ा मुझे बहुत अट्रैक्टिव लगा कि आप लोग जो संशोधन आ रहे हैं उसके वन लाइनर बना रहे हैं। मतलब अपन भी कोशिश करेंगे कि गवर्नमेंट सिस्टम के लिए अगर डायरेक्ट टैक्स में, सॉरी इनडायरेक्ट टैक्स में अगर आप ऐसे संशोधन का वन लाइनर बनाते हैं तो उसको मैं बात कर लूंगा कमर्शियल टैक्स कमिश्नर से कि उसको हमारे ग्रुप में भी हम डाल देंगे, जो हमारा कमर्शियल टैक्स का ग्रुप है, क्योंकि संशोधन डेली आ रहे हैं और वास्तव में 4 पेज शायद सब अधिकारी नहीं पढ़ पाते होंगे, तो हमारे लिए भी बहुत यूजफुल होगा। तो वी वुड लाइक टू बी पार्ट ऑफ दिस कंट्रीब्यूशन। सेकेंडली, विषय पे आने से पहले मैं इंदौर ब्रांच का धन्यवाद इसमें भी देना चाहूंगा कि जो हमारे इनिशिएटिव अभी कोरोना के हो रहे हैं या सेवा के जो भी विभिन्न संस्थान कार्य कर रहे हैं शहर में, उसमें भी सीएज अपना बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन दे रहे हैं। और जो बर्थडे का आपने तय किया, मुझे लगता है इट विल रियली बी हेल्पफुल फॉर द सोसाइटी एट लार्ज। एक और पॉइंट जो लोकल फंड ऑडिट का अभी जो मुझसे पूर्व स्पीकर थे उन्होंने उठाया, मैं निवेदन करूंगा जो भी अभय जी या कोई भी आपके यहाँ से एक नोडल आप नियुक्त कर लें। और चूंकि मैं अभी प्रशासक भी हूं नगर निगम का और हमारी लोकल ऑडिट टीम है, तो हम एक छोटे मतलब इंदौर के स्तर पर ये कार्य अभी से ही आरंभ कर सकते हैं। हमारी जो लोकल ऑडिट टीम्स है उनका हम वर्चुअल माध्यम से आप लोगों के साथ एक ट्रेनिंग सेशन रखवा देंगे ताकि वो एम्पावर हो जाए। वो सब इंदौर में ही पदस्थ हैं और चूंकि मैं प्रशासक हूं तो आई कैन टेक अप दिस इनिशिएटिव। मध्य प्रदेश के बृहत स्तर पर तो जो माननीय मुख्यमंत्री जी से आपकी बात हुई है वह कार्य लिया ही जाएगा, पर हम इंदौर पे अभी उसको आरंभ कर सकते हैं। और हम बहुत शीघ्र ही, अभी 31 तक तो अपना सर्वे चल रहा है और ये वित्तीय वर्ष कंप्लीट होगा, पर हम अगले महीने ही इस इनिशिएटिव को आरंभ कर सकते हैं। तो जो भी आपके यहाँ से नोडल बनेंगे मुझे उनका नंबर व्हाट्सएप कर दीजिए, विल टेक इट फॉरवर्ड। जो आज का विषय बैंक ऑडिट का लिया है, ये भी एक बहुत महत्वपूर्ण विषय है। और जैसा अभी एक तो अभी कोरोना काल है उसकी वजह से, और पिछले अगर कई वर्षों में देखें तो बैंकिंग सिस्टम में एक बहुत बड़ा बदलाव आया है। आईटी बहुत ज्यादा यूज हो रही है। पहले जो ट्रांजैक्शंस आदमी स्वयं जाता था, अब आईटी से या इंटरनेट से हो रहे हैं। उसका एक फायदा तो यह कि आपको इंफॉर्मेशन जो है किसी एक जगह उपलब्ध हो जाती है, वो थोड़ा सा आपका काम आसान भी हुआ है। और हो सकता है कि जो नवीन सीएस हो, दे में बी रियली गुड इन आईटी, पर हो सकता है जो कुछ बुजुर्ग सीएस काम कर रहे हो, हालांकि आप लोग जो इस तरह से अपडेट करते हैं तो संभवतः वो भी अपडेटेड होंगे या उनके पास जूनियर्स होंगे, पर हो सकता है कि अधिक उम्र के लोग उतना अपडेट ना हो, तो इस चेंज को भी आपको आत्मसात करना है। और उसकी वजह से आप देखें फ्रॉड भी बढ़ते हैं बैंकिंग सिस्टम के ऑडिट में। अभी मैं पिछले दिनों पढ़ रहा था कि एनपीएस के बारे में बहुत अच्छी रिपोर्ट्स अभी भारत सरकार ने जारी की हैं। आप लोग भी संभवतः जब बैंक्स का ऑडिट करते होंगे तो एनपीएस का सूक्ष्मता से मेरे हिसाब से आप लोग भी उसको इंडिकेट करें, क्योंकि न सिर्फ इंडस्ट्रियल सेक्टर, पहले हम ऐसा मानते थे कि एजुकेशन सेक्टर के अंदर एनपीएस कम होंगे और साउदर्न सिटीज में कम होंगे, पर आश्चर्य की बात यह है कि साउथ की सिटीज के अंदर भी एनपीएस एजुकेशन सेक्टर में भी बढ़े हैं। तो आप अगर इसको इंगित करेंगे तो शायद बैंक की एक जो राशि एनपीएस में जाती है वो उससे बाहर निकलेगी और बैंक उसके लिए स्टेप्स ले सकते हैं। चूंकि सभी गवर्नमेंट सिस्टम में आने में वर्षांत में जो आप ऑडिट करते हैं वो एक एसेंशियल है, वो निष्पक्ष रहे। आपकी एक जवाबदारी एम्प्लॉयर के प्रति तो है जो आपको हायर करता है, चाहे वो नगर निगम हो,
जिला पंचायत हो या बैंक हो या कोई प्राइवेट कंपनी हो, परंतु समाज के प्रति भी है, क्योंकि सरकार सिर्फ देखती है सीए साहब के साइन है, सीए साहब ने ऑडिट कर लिया है तो सब कुछ ठीक है। तो उस दृष्टि से भी आप उसकी जिम्मेवारी को अच्छे से निभा रहे हैं और मैं समझता हूं कि आगे भी उसको अच्छे से निभाएंगे। मैं उसके लिए भी आपको बधाई दूंगा। और दूसरा, एक केवाईसी वाला, चूंकि बैंक्स के आजकल फ्रॉड बढ़ रहे हैं और एटीएम या अन्य माध्यम से भी आजकल राशि का फ्रॉडलेंट व्यू में आहरण हो जाता है। मैं चाहूंगा कि बैंक्स को भी आप केवाईसी नॉर्म्स को फॉलो करने के लिए जरूर इंगित करें। इस तरह की कोई भी कमी है आप अपनी रिपोर्ट में दें। और मैं पुनः बधाई देना चाहूंगा इंदौर ब्रांच को। और जो आपका कंटिन्यूअस लर्निंग का, स्टडी का और इंफॉर्मेशन शेयरिंग का प्लेटफॉर्म है, मैं चाहूंगा आप अपने पूरे सभी सदस्यों को तो एजुकेट कर ही रहे हैं, इसके साथ साथ नगर निगम या हमारे शासकीय लोगों को भी हम इसमें पार्ट कराना चाहेंगे। जैसे कमर्शियल टैक्स में आप लोगों के सहयोग से 3 साल 4 साल तक बहुत अच्छा काम किया और ऐसा लगा ही नहीं कि नया लॉ आया है। यू आर पार्ट ऑफ ए फैमिली एंड यू विल कंटिन्यू टू बी पार्ट ऑफ फैमिली। अभी तक सिर्फ इनडायरेक्ट टैक्सेस में था, हम इस संबंध को और अन्य क्षेत्रों में भी आगे लेना चाहेंगे। कोरोना के बारे में मैं हमेशा जब भी मंच पे बोलने का अवसर मिलता है तो मैं निवेदन करता हूं, कोरोना अभी है, कोरोना बढ़ रहा है, संख्या आप न्यूज़पेपर में देख रहे होंगे बढ़ रही है। आप लोग भी सोशल डिस्टेंसेस का पालन करें। जितने लोग वर्चुअली कनेक्ट हुए हैं वेरी गुड, किंतु जो फिजिकली अपने सीए लोग आए हैं वो डिस्टेंसेस का पालन करें, मास्क लगाएं और जो भोजन वगैरह करते हैं तब थोड़ी सी हम लोग या चाय पीते हैं तो मास्क हटाते हैं, उस समय दूरी बनाकर रखें। इससे आप अपनी रक्षा भी करेंगे, अपने साथियों की करेंगे, अपने परिवार की भी करेंगे और घर में बुजुर्ग हैं उनकी भी करेंगे। इस वर्कशॉप के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। और मुझे आमंत्रित किया, मैं अपनी जो बातचीत थी आपके साथ कर पाया, सुझाव रख पाया, इसके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपके स्वर्णिम शब्दों के लिए। साथ ही जो आपके द्वारा सुझाव दिए गए हैं इंदौर ब्रांच के लिए, वो चाहे रिसेंट अपडेट्स को लेकर हैं या जो ट्रेनिंग सेशंस को लेकर हैं, तो निश्चित ही इंदौर ब्रांच आपकी उम्मीदों पर खरा उतरने की कोशिश करेगी। और अगेन थैंक यू सो मच फॉर टेकिंग आउट टाइम आउट ऑफ योर बिजी शेड्यूल एंड फॉर a formal vote of thanks. Now I request Vice Chairman of Indore Branch, CA संकित भंडारी जी। थैंक यू अंकुश भाई। सर 1 मिनट और लेंगे आपका धन्यवाद प्रेषित करने के लिए। आदरणीय डॉक्टर पवन शर्मा साहब, हमारे आज के चीफ गेस्ट और नगर निगम के प्रशासक, सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप यहाँ उपस्थित हुए, बहुत बिजी शेड्यूल है आपका, उसके बाद भी आपने हमारे आग्रह को स्वीकारा और जो बात आपने कही वो निश्चित ही दिस वुड बी प्रूव टू बी अ वर्ड्स ऑफ विजडम फॉर ऑल द चार्टर्ड अकाउंटेंट्स प्रेजेंट हियर एज वेल एज वर्चुअल। और जो आपकी खूबी है वो त्वरित निर्णय लेने की, उसे हमने देखा कि जैसे ही आपको पता चला कि चार्टर्ड अकाउंटेंट्स लोकल बॉडीज में ऑडिट के लिए तत्पर हैं और आ सकते हैं, और आपने जिस तरह से इसे स्वीकार किया, हम सबकी तरफ से आपको बहुत बहुत धन्यवाद प्रेषित करते हैं। साथ ही मैं धन्यवाद देना चाहूंगा सभी हमारे स्पीकर्स और जो उपस्थित फिजिकली और वर्चुअली हैं, उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे CIRC चेयरमैन CA नीलेश गुप्ता जी जो कि प्रेजेंट फिजिकली हुए, उनका भी धन्यवाद। साथ ही केमिशा मैडम जो कि CP कमेटी चेयरमैन हैं और बहुत त्वरित निर्णय लिया उन्होंने भी वर्चुअल कम फिजिकल कॉन्फ्रेंस करवाने का पूरे भारत देश में। और सभी मैनेजमेंट कमेटी मेंबर्स, सभी सीनियर्स जो कि प्रेजेंट है यहाँ पे वर्चुअली, उनका सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप उपस्थित हुए। आगे की कार्रवाई के लिए मैं अंकुश जी को उपस्थित करता हूँ। थैंक यू सर।